اسمبلی کے حوالے سے ابھی گنڈا پور کے حوالے سے جو بھی عمران خان سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں، نورین خان نیازی اور عظمیٰ خان نے ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور اب علیمہ خان یہاں پر ٹاک کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اور آج میری بہنیں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کی ملاقات ہوئی ہے. مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل بالکل نہیں جانے دیتے، لیکن جب یہ جو پوائنٹس عمران خان نے دیے وہ میں نے اس کو اسٹرکچر کر دیا، کیونکہ 4 پوائنٹس ہیں اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا، انہوں نے بہت تعریف کی ہے، کیونکہ میری بہنوں نے ان کو بتا رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو سوشل میڈیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا خاص طور پہ کہ وہ ایک ان کا جو کردار ہے، انہوں نے اس وقت بہت مشکل وقت میں وہی ہیں جو لوگوں کی عوام کی آواز بنے رہے. وہ عوام کی آواز ہے، اور جو عوام کی آواز ہے سیاست میں اور جمہوریت میں، عوام کی آواز لوگوں تک، جو عوام تک انہی کی آواز، جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ عوام کی آواز سنیں. اور سوشل میڈیا ہی آج کل میڈیم ہے جہاں سے آپ کو آواز عوام کی آئے گی، کیونکہ جو باقی میڈیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہمارے سامنے میڈیا کھڑا ہے، لیکن ان جو ہماری نیشنل میڈیا ہے ان کے اوپر بہت مجبوری ہیں، تو ان کی لمیٹیشنز ہیں. ایک یہ پوائنٹ تھا، انہوں نے بہت تعریف کی ہے اس کی، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام اس لیے جاری رکھیں نہیں تو عوام کی آواز جو لیڈرز ہیں ان تک نہیں پہنچے گی. دوسرا پوائنٹ بجٹ کے اوپر ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس بیرسٹر صاحب بھیجے گئے تھے جنہوں نے آ کے جو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بجٹ اتنی جلدی اور اتنی مجبوری میں کیوں پیش کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو میرے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ 5 ہفتے سے ہم پیغام باہر میری بہنیں لے کر آ رہی تھی، اور میں بھی ایک دفعہ تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس مشاورتی ٹیم آئے، اور مشاورتی ٹیم سے میں پہلے ڈسکس کروں گا، جس کے اندر جو مزمل صاحب ہیں، ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں نا، ایڈوائزر وہ ہوں، تیمور چھکرا صاحب ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عمر ایوب شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور. یہ ٹیم میرے پاس آ کر بیٹھے گی اور مجھے سمجھائے گی کہ بجٹ کیا ہے. اگر اب آپ نے جو بھی انہوں نے مجبوریاں بتائیں، مجھے وہ اس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا، تو جو بھی انہوں نے کہا چلو کر دیے، لیکن آپ جائیں سپریم کورٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ، پہلے کیوں نہیں جا کر سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے، عمران خان کی ذمہ داری ہے بجٹ کیسے اس کو ایلوکیشن کرنی ہے. آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ جائیں سپریم کورٹ جا کے پرمیشن لیں. آپ کو یہ جو پہلے آپ نے نہیں کیا، اور آپ وہی مشاورتی ٹیم میرے پاس آئے گی. میں جو چینجز کروں گا وہ چینجز کرنے پڑیں گے آپ کو. میں دیکھوں گا کہ ایلوکیشن کیسے ہے. وہ بالکل خوش نہیں تھے کہ سرپلس ہوتا ہے نا، سرپلس آپ نے کیوں دکھایا، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بینیفٹ کرتا ہے. تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کر چینجز آئیں گے. جو بھی وہ چینجز ریکمینڈ کریں گے وہ بجٹ میں شامل کیے جائیں گے. یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بجٹ قبول کر لیں جو بہت جلدی میں بغیر کسی پارلیمنٹ ان کی اسمبلی میں ڈسکشن کے بغیر 3 گھنٹے کے اندر جو پاس کر دیا گیا ہے. تو وہ ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ
ये हतमी फैसला नहीं है इस बजट का। दो ये हो गया। तीसरा उन्होंने बात की ड्रोन्स की। वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा से, बल्कि 2011 से मैंने यहाँ से पूरी मार्च लीड की थी। वो मार्च पूरी एक एहतजाज लेकर गए थे वज़ीरिस्तान के 5-6 हज़ार लोग उस वक़्त तक बेगुनाह बच्चे और औरतें इन ड्रोन अटैक्स में शहीद हो चुके थे। और उन्होंने कहा मैं हमेशा से ड्रोन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये ड्रोन हमले कर कौन रहा है, लेकिन जो भी हमले कर रहा है आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें। और वो अब लॉयर्स बैठ के बताएंगे कि इसके ऊपर FIR दर्ज कैसे की जाएगी। ये उनका तीसरा पॉइंट था। ड्रोन हमले बता दिया आपको, क्योंकि वो इसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल मांग रहे हैं। हाँ, और वो ये भी कह रहे थे, मेरी बहन बता रही है कि ये जो ड्रोन हमले जब आप करेंगे, यही एक वजह है, बुनियादी वजह जिससे दहशतगर्दी बढ़ती है। और आपको सबको पता होगा कि 2004 से तकरीबन 21 साल से, जब से ये 25 साल से इमरान खान ने हमेशा कहा है जब आप बेगुनाह लोगों को मारेंगे तो उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट उनका था डिक्टेटरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ ने कोई कहा था हाइब्रिड सिस्टम का। कहते इस वक्त पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने मुलाकात की, जैसे कहते मैं हमेशा कहता हूँ लेकिन मुझे बात करनी है, मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने जो फैसले करते हैं। मैं उनसे क्या टाइम ज़ाया करूँ जिनके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो इसका आपके पास सबूत कहाँ मिलता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर बात की, उससे जो भी उन्होंने बातचीत की, और उसी का शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का। इसका मतलब है ये पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है, नहीं तो आपकी मार्शल लॉ है। और आपका सबूत इसी में मिलता है कि बाहर के ममालिक आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं। बाहर के ममालिक शहबाज शरीफ को मैं ख्याल में जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। तो ये इमरान खान के जो 4 पॉइंट्स है वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। मैडम ये बताइएगा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है PTI में कि जो KP का बजट पास किया गया है उस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। सियासी जो कमेटी है आपकी, बस सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि ये उजलत में किया गया है। क्या आप समझती हैं कि वाकई ये उजलत में किया गया है? इमरान खान की अप्रूवल ज़रूरी थी? इस बजट को पास करके इमरान खान को साइडलाइन किया गया है? देखिए, जो भी इनकी मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता। हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था तो, और आज हमारी मुलाकात भी थी, तो हमारे से भी कोई बातचीत, हम भी कोई पैगाम दे देते। लेकिन आज बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिल गई थी अंदर आने की। मैडम, क्या इमरान खान साहब ने ये बजट कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है? इमरान खान ने कहा है कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, उनकी मुशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप परमिशन लेकर आएँ, जो उन्होंने मुशावरती टीम का 5 हफ्ते से कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ये अली मीन गंडापुर को बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैडम, और अब जब वो परमिशन देकर टीम मिलने आएगी, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान, और वो कह रहे हैं जब टीम मिलने आएगी फिर मैं जो उसमें तब्दीलियां करूंगा वो बजट में शामिल की जाएंगी। मैडम, जो कारकुनान है वो अली मीन गंडापुर और बाकी KPK की गवर्नमेंट को गद्दार कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि KPK की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, जब इमरान खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है, आपको इसी से समझ आना चाहिए, और सियासतदानों को इसी से चीज़ से समझ आनी चाहिए। वो ये इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि जब अवाम एक अपना रद्द अमल देती है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई खिलाफ है। आपको ये समझना चाहिए कि आप उनकी आवाज़ सुने, आप उनको सुने। यही जमहूरियत होती है। हर सियासतदान को समझना चाहिए कि जब आप जमहूरियत में इलेक्ट होते हैं, आपको ऊपर नहीं देखना, आपको अवाम को सुनना है। अगर अब आप अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया है
अपनी सोशल मीडिया को कि आप लोग आवाम की आवाज़ बने। मैडम ये बताइएगा, आपके पीछे तैमूर सलीम झगड़ा साहब खड़े हैं, पिछले 6 माह से आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आज बैरिस्टर साहब को मुलाकात नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई, सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको नहीं दी गई, क्या वजह है इसकी, क्या वजह? अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते हैं कौन अंदर आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकबर राजा को नहीं बुलाएंगे, अली मीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाज़त मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिलती है। आपको बैरिस्टर साहब के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो आपकी मुलाकात नहीं करने देते हैं और खुद मुलाकात करके चले जाते हैं, फिर दोनों बहनें आप उनकी मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल्लाह न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पंजोथा खड़े हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम, ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज़ का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर सीज फायर करके अपने फैसले कर लेंगे, ये तो उनके मुल्क की। हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। पाकिस्तान ने कहा कि नोबेल प्राइज़ जो नाम, एक सेकेंड, पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क में, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मैडम आप ये बताइएगा, आपने ताबुजात का इजहार किया बजट पे, सलमान अकबर राजा साहब ने किया, बाकी पार्टी के लोगों ने किया, आज 2 बहनें मिली हैं इमरान खान से, तो उन्होंने ताबुजात का इजहार किया इस बात। इमरान खान ने उसका आपको हल, इमरान खान लीडर, बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है, उन्होंने हल दे दिया है। उन्होंने कहा अभी भी आओगे मेरे पास तो इसका और मैं तब्दीली करूंगा, जो मैं तब्दीली करूंगा वो बजट में शामिल इसका होगा। मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं, इमरान खान सिर्फ हल ढूंढते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो इंसान है जो 1 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जो अकेले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि अकेले बैठ के आधे घंटे की मुलाकात है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे के लिए जो मेरी बहनों को मिलते हैं, और हम 15 तो बहुत 20 मिनट 15-20 मिनट एक हफ्ते में फैमिली सिर्फ मिल रही है, 1 महीने में किसी और को मुलाकात नहीं करने देगी। अब फिर भी देखें, ये वो शख्स है जो सोच समझ के और बड़ी मैं क्या मैं विजडम के साथ और लीडर की तरह जवाब देते हैं, और हमारे जैसे अवाम जो होती है वो फर्क जवाब देती है। मैंने तो आपको आज सिर्फ इमरान खान का पैगाम दिया।